right? So these are the keywords. जैसे कि int is a keyword, right? Int is a keyword which we use for the data type. You cannot use int word as a variable name. So int is a keyword, it's a reserve word. So ऐसे बहुत सारे words हैं which we use in our program which you cannot use as a variable name. So वो gradually समझ में आ जाएगा कि भाई कौन से words use नहीं कर सकते. But yeah, this was the one point. So after variable names and all these things, yeah, one point, this is our statement, right? This is our integer no1, no2 and ans. Keep in mind guys, semicolon indicates end of the statement, end of the instruction statement. I'll use these two terms. If I say this is my editor and this is my program, right? This is your program. Each line can be, you can say it's a statement, but mostly I'll use the term instruction. I'll use the term instruction. So can I say group of instruction is a program, or program is made up of group of instructions? Yes or no? Yes, ma'am. बोला करो यार, लगेगा कि डिस्कनेक्ट हो गए. Anyways, so program is a group of instructions, and each instruction should be ended by the semicolon. So do not forget to put the semicolon. जैसे कि एक इंग्लिश स्टेटमेंट में we put the full stop to indicate that end of the statement. Similar way, in a C programming we put the semicolon to indicate that this is the end of the statement. So I think we are done with the line. So after that, after this int no1 no2 semicolon, now we have the next line clr scr. clr scr. So is it a function? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How did you come to know? Brackets. Brackets. So sometimes we call it a braces or a brackets. And semicolon is must because ultimately it's an instruction. CLR SCR stands for it is used to clear the screen. But कौन सा screen? Console screen, right? If you want to clear your console screen, you can use the CLR SCR कहीं पे भी. Yes, it is not necessary कि भाई एक ही बार you can use the multiple times. CLR SCR you can use multiple times. कौन से cases में ज़रूरत पड़ेगी? Let's say this is my output screen, my console screen, और यहाँ पे कुछ भी है, XYZ input हुआ कुछ भी, and I want result, this is my input, let's say, and I want result in some specific manner. I don't want this input portion. So what I do in the code, I will write CLR SCR in between these lines. So क्या होगा, ये पूरा clear हो जाएगा, and at the end I will get this much of portion as my output, right? So CLR SCR you can use. ये चीज़ें जब आएगी तब ज़्यादा समझ में आएगा, but right now just keep in mind CLR SCR is a function which we use to clear the screen. Let's see how does it work. So if I don't use this CLR SCR, what happens? Let's see. I compile the program, I run the program. So let's add 1, 2, 3. I hit the enter. Again I run the program. So we can see the previous output, right? We can see the previous output. I don't want this previous output every time. Let's run it again. वापस से आ गया ये. I don't want this output again and again, or I don't want this previous output, and so I use
CLR SCR which clears my screen, right? Easy. Yes, ma'am. Yes, Yeah, ma'am. ma'am. This is Yes. easy. Yes, ma'am. Yeah, now come to the printf and scanf, most important functions, and बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं इसमें, बट आई होप यू पीपल विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द printf and scanf statements. Sorry. So see, two functions we have. Printf and scanf. First we will see the syntax. First we will talk about the printf. Let's see the syntax of the printf. Syntax या तो फिर हम बोल सकते हैं structure of printf statement कैसा होता है. First you need to write printf and then you have brackets. In this bracket whatever you will write वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे का वैसा कंसोल पे प्रिंट होगा. So print function, F stands for function. F stands for function, print. To print something on the console. Printf function we use to print something on the console, right? What you want to print, whatever you want to print, always use double quotes. Always use double quotes, and here you can write anything. Whatever you will write वैसे का वैसा वो print हो जाएगा. Now the use of this function is to display information. अगर अलग टर्म्स में बात करें तो display information, because see I show you something, ध्यान से देखना. See, I'm just commenting this printf statement. So see, ultimately, what is the use of the printf statement? The printf statement is used to display the information. क्योंकि एकदम से मेरे सामने यार एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, राइट? आई नीड सम इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड, राइट? देयर मस्ट बी समथिंग, मुझे पता चले कि मुझे क्या करना है, एंड सो वी हैव अ printf statement. So here I don't have printf statement, but scanf is there. मतलब दो इनपुट भी जाएंगे, सम के तो प्रोसेस भी होगा और इसके तो प्रिंट भी होगा, राइट? तो लेट्स सी क्या होता है. See, it is prompting, but I don't have any message. Display message is not there. तो I may get confused कि मुझे क्या करना है. इस प्रोग्राम में I know that I have to enter number. ठीक है, let's enter the number. सेकेंड printf भी नहीं है because we have commented it. तो बट मुझे पता है कि यहाँ पे एक नंबर इनपुट करना है, राइट? सो scanf बेसिकली यूज टू टेक द इनपुट, और printf यूज होता है सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करने के लिए. एंड व्हेन आई प्रेस द एंटर, एडिशन इज 8, क्योंकि printf एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये ध्यान में रखना. 3 5 एडिशन इज 8. सो यहाँ पे क्या हुआ, सी printf नहीं चला मेरा, राइट? बिकॉज मैंने कमेंट कर दिया था. बट थ्रू दिस scanf statement I could be able to enter my first number. Because of this scanf statement I was able to enter the second number. यहाँ पे प्रोसेस भी हुआ, and with the help of this printf statement I could able to print my answer, right? I was able to print my answer. So this is the use of the printf statement, that whenever you want to display something or if you want to give the message to the user, you can use the printf statement. समझ में आया आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Ma'am. Yes, ma'am. Right. So this is the use of printf statement. printf statement, okay, हम वो दो टाइप के होते हैं, उसमें हम बाद में आते हैं. बट राइट नाउ जस्ट कीप इन माइंड printf statement, ब्रैकेट्स, whatever you write in the double quotes वो वैसे का वैसा प्रिंट करेगा. सेमीकोलन तो चाहिए ही चाहिए.
So this is about the printf function. Question for you: printf statement or a printf function belongs to dash library. stdio. Perfect. Perfect. stdio.h. Very good. Okay. So after printf, let's talk about the scanf. So we have a scanf statement. scanf का syntax कैसा है? We have brackets. बहुत ध्यान से देखना, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें. scanf का syntax is something like this. It is divided into two parts. So here we have a comma. The first part is for the format specifier, this part, and the second part is for the address, right? The first part is for the format specifier and second part is for the address. First part जो है, it is in the double quotes. Second part में the mandatory thing is ampersand sign. End का sign we call it a ampersand. We call it a ampersand sign. Okay, तो इसको समझते हैं कि क्या होता है ये. See, when I say enter number, तो हमें पता है कि मेमोरी में कहीं ना कहीं at the time when you write the first statement integer no1 no2 sum, तो मेमोरी में कहीं ना कहीं जगह बन जाती है. ये no1 की जगह है, ये no2 की जगह है और ये ans की जगह है. ऐसा मेमोरी में हो जाता है. किसी 3 लोकेशन को नाम मिल गया. अब क्या होता है, when you use, बहुत ध्यान से सुनना guys, when you say scanf, scan something, scan function, scan something, scan मतलब क्या, you are taking input from the user, you are taking input from the user. तो जब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा कंसोल पे, इट विल प्रॉम्प्ट टू एंटर समथिंग. यूजर क्या इनपुट करेगा वो यूजर को पता है, बेस्ड ऑन योर प्रिंटफ स्टेटमेंट. एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, वो यूजर को पता है. बट how will we write the scanf statement? If it's an integer number, we will use %d. Okay, %d का मतलब है it is a format specifier which indicates that the user has to enter the integer number only. अगर उसने कुछ और डाला तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा या तो फिर डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा बिकॉज इनपुट रॉन्ग होगा, राइट? सो फॉर्मेट स्पेसिफायर इज बेसिकली इंडिकेट्स दैट द नंबर शुड बी इंटीजर. तो %d का मतलब है इंटीजर, राइट? ठीक है, तो हमने जैसे अभी 3, 5 एंटर किया था तो मैंने 3 इनपुट करवाया, राइट? कंसोल पे आई एंटर 3. लेकिन ये 3 स्टोर कहाँ पे होना चाहिए? Because this is my first number, so and I have taken no1 as a variable name for my first number, so I will write no1 over here. तो इस लाइन का पूरा मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना, पूरा मतलब ये होता है स्कैन द नंबर, स्कैन द डेटा, स्कैन द इनपुट. कैसा इनपुट? इंटीजर इनपुट. ठीक है, इंटीजर लेंगे, कहाँ जाके स्टोर करना है? no1 में. तो भाई no1 कहाँ पर है? तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा. no1 तो हमारे लिए है लेकिन इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा ना, 30HB18 करके. सो भाई तू इस लोकेशन पे जा, no1 वाली लोकेशन पे जा और यहाँ पे जो भी नंबर इनपुट हो तो यहाँ पे आके स्टोर कर दे. This process happens when you execute this scanf statement.
I repeat. Scanf statement is divided into two sections. Scanf statement is divided into two sections. First part and second part, which is which you can where you can use the comma to separate both the parts. First part contains format specifier, जो हमेशा डबल कोट्स के अंदर होगा, और here we can write the format specifier. और second part में we write the name of the variable where you want to store your number along with the ampersand sign. Ampersand sign indicates कि भाई तू इस जगह पे जा, go to this place, because ये एड्रेस उसको पता होगा, राइट? ये एड्रेस उसको पता होगा, सो इट विल गो टू दिस लोकेशन एंड वॉट एवर द वैल्यू यू विल एंटर, वो सीधा जाके इस लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा. if your data, if it's integer value, use %d. if it's a char value, use %c. if it's a float value, use %f. if it's a string मतलब multiple characters, use %s. so all this are the format specifier. Based on the data you are taking from the user, use the format specifier accordingly. आया समझ में इतना सबको? मैम Yes, ma'am. यस, बोलो. अगर हम मैं एड्रेस नहीं डालूं, मतलब नंबर और नहीं डालूं, तो कहाँ जाके स्टोर होगा वो? क्या फिर से बोलो. ये एड्रेस के जगह पे आपने नंबर 1 लिखा ना, NO1 लिखा ना, तो अगर मैं वो ना डालूं तो वो कहाँ जाके स्टोर होगा? क्या ये वाला लाइन? हाँ एनो वो स्टोरी नहीं होगा बेटा, इट विल गिव एन एरर, वो आपको आगे जाने ही नहीं देगा, बिकॉज इट्स अ सिंटैक्स, इट्स अ फॉर्मेट विच रूल है, तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, राइट? ओके. एरर देगा. चलो फिर नेक्स्ट क्वेरी. मैम अगर जैसे हमने printf को कमांड में कन्वर्ट कर दिया, तो हम जब हमने printf में no1 नहीं लिखा है, पर scanf में हमने चेंज कर दिया, no1 नहीं लिखा, कुछ और लिखा, तो कोई चेंजेस होंगे, कोई एरर होगा? डेफिनेटली एरर नहीं होगा, बट वो पर्टिकुलर उस वेरिएबल में जाके स्टोर होगा. printf एंड scanf आर कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? जैसे कि सी आई गॉट योर पॉइंट, यू आर आस्किंग कि भाई जैसे कि हियर यू हैव रिटर्न no1, राइट? एंड मान लो कि यहाँ पे अगर हम 2 कर दें, ऐसा ही बोल रहे हो? दिस इज योर क्वेरी? यस मैम, यस मैम. है ना? हाँ. तो सी printf का काम तो क्या है कि भाई वो सीधा प्रिंट करेगा, उसको जो भी प्रिंट करना है वो. लेकिन scanf का काम अलग है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपने printf में क्या लिखा है, उसको सिर्फ इतना मतलब है कि भाई यहाँ पे कौन से वेरिएबल का नाम है, द नेम ऑफ द वेरिएबल यू आर राइटिंग हियर, वो वहीं पे जाके स्टोर हो जाएगा. सिंपल. ओके मैम, ओके. ओके. मैम ये रन करके एक बार दिखाओगे, मतलब नंबर तो अपना डाला हुआ आता है. क्या no2 वाला, ये वाला? हाँ, वही रन करके एक बार दिखाओगे, मतलब कैसे वो हाँ वापस सेट? हाँ, देखो बिल्कुल देखो, आराम से देखो. चलो, एनीबडी कैन इमेजिन, एनीबडी कैन गेस क्या होगा इस प्रोग्राम में. ध्यान से सुनो, लॉजिक में समझाऊंगी, यू हैव टू जस्ट इमेजिन. फर्स्ट नंबर वी आर टेकिंग एंड स्टोरिंग एट no2 लोकेशन. सेकेंड नंबर आई एम टेकिंग which again I am storing at no2 location, right? और जो सम हो रहा है तो no2 है और no1 में कुछ नहीं है, तो सम में क्या आएगा? पहले इसको थोड़ा ग्राफिकली समझ लें. तो बहुत सही क्वेश्चन पूछा. किसने पूछा क्वेश्चन? मैम विशाखा. नहीं, अभी किसने पूछा? रन कर. ओके ठीक है, चलो जो भी है. एनीवेज, सी ध्यान से देखना. ओके, आगे से whenever you run the program और कुछ गड़बड़ हो या समझ में ना आए, तो always do the paperwork. Without paperwork सीधा रन मत करना. So because see, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, दिस इज फॉर द लॉजिक बिल्डिंग, राइट? हमारा लॉजिक बहुत सही होना चाहिए. along with the logic we should be very good in the
एनालिसिस, हमें पता होना चाहिए चीज़ें कैसे होती है। सो पेपर वर्क जितना करोगे उतना सही होगा। तो सी, अब ये प्रोग्राम में क्या हो रहा है, आई हैव 3 वेरिएबल्स, NO1, NO2 एंड सम। 3 वेरिएबल्स है मेरे पास मेमोरी में, राइट, 3 वेरिएबल्स है। अब फर्स्ट वेरिएबल आई एम टेकिंग वो NO2 में स्टोर हो रहा है, सेकेंड भी NO2 में स्टोर हो रहा है, तो सम में क्या मिलेगा? आइडियली सोचो, दिस इज माई कॉन्सोल स्क्रीन, राइट। कॉन्सोल पे पहले फर्स्ट नंबर मैंने डाला 3, तो इट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड वेयर गाइस? NO2 NO2, यहाँ पे वो 3 आ गया। वापस से उसने मुझे पूछा एंटर नंबर, तो मैंने बोला 4, तो वो क्या करेगा, 3 को ओवरराइट कर देगा, क्योंकि उसके पास एक ही जगह है, एक हाथ में हम या तो बॉटल उठा सकते हैं या बैग उठा सकते हैं, राइट, इट इज लाइक दैट। तो एट वन टाइम वी कैन ओनली स्टोर 1 वैल्यू, तो 4 आ गया। अब वो जब एडिशन करने जाएगा तो NO1 प्लस NO2 करेगा। ओके, व्हाट इज देयर इन माय NO2? 4। NO1 में क्या पड़ा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। When there is nothing, you have not assigned any value to the variable, it always contains garbage value. Garbage value means कुछ भी पड़ा होगा उसके अंदर randomly, so of course you will get a random answer. It varies, again it varies to compiler to compiler, right? तो कैन यू इमेजिन कि इसमें क्या होगा? अपने अपने माइंड में रखना, जिसको जो भी सोचना है जस्ट माइंड में रखना, एंड लेट्स चेक विद द आउटपुट। किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, सो सी, here we have our program. सी, NO2 NO2 दोनों में NO2 NO2 पड़ा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है NO1 NO2 एंड आई एम प्रिंटिंग द सम। लेट्स कंपाइल इट। कंपाइल हो गया, रन हो गया। NO1 3, NO2 4। सबके माइंड में है क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ सोच के रखना, जो भी whatever your logic, keep something in your mind. See what we got. What we got? garbage value. Perfect, we got garbage value because NO1 में कुछ ना कुछ garbage value पड़ा हुआ था, so I got this answer. मतलब मुझे सही आंसर नहीं मिला। आया बट समझ में? मैं 3 NO1 के सामने लिखा है, क्या? NO1 तो हमने लिखा ही नहीं था, तो फिर भी 3 उसके सामने लिखा हुआ है। इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये प्रिंटफ स्टेटमेंट है। प्रिंटफ में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, देखो जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ लिखती हूँ एंटर, दैट्स इट। मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, एंटर, राइट, कुछ भी, 3 4 एनीथिंग। एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2 इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस, ताकि बीइंग अ यूजर मुझे पता चले कि मुझे स्क्रीन पे काम क्या करना है। अगर मेरे सामने एक ब्लैंक स्क्रीन है तो मुझे नहीं समझ में आएगा, आई नीड इंस्ट्रक्शंस, एंड सो वी यूज प्रिंटफ स्टेटमेंट। ओके मैम, समझ में आया सबको? यस Yes, ma'am. Great. Someone raise the hand. Ma'am, every time we will get the same garbage value. Sorry? Every time we run the program, can we get same value? It depends. It depends. It depends. Not necessary. It varies from compiler to compiler. Not necessary. कभी कभी अलग भी मिलेगा, कभी एक जैसा भी मिलेगा. It is not fixed. Okay, so is this concept clear to everyone? The concept of scanf, how to write the scanf statement? Yes, everyone. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay, and so it was about the printf and scanf. There are two types of printf statement. One printf statement, display message, and एक दूसरा printf statement होता है which we use to
retrieve the data from memory. Means we retrieve the data from the memory and we'll print that data. क्या होता है इसमें देखो, ये वाला समझ में आ गया सबको, डिस्प्ले मैसेज वाला सिंपल, राइट? Yes, ma'am. Like printf statement we have and in the double quotes you can write anything, जो भी लिखना है लिख सकते हो. Now let's focus on the second version of the printf statement. So second version is like this. printf then brackets. Again, ये जो printf statement है, it is divided into two parts. It is divided into two parts. अब दो parts का मतलब क्या है? Here double quotes, यहाँ पे double quotes होंगे, और here you can write something, anything you can write, and यहाँ पे एक और चीज़ क्या होगी वो? So here you can write message plus format specifier. Message plus format specifier. मैंने लिखा यहाँ पे answer is equal to %d. So answer is equal to ये मेरा message है and %d is my format specifier, right? As I told you that this printf is we used to retrieve the data from the memory, right? तो यहाँ पे जो %d आया, this %d, यहाँ पे आई एम गोइंग टू प्रिंट समथिंग, सम वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू कौन सा होगा? बिकॉज दिस इज %d, इतना तो समझ में आया कि भाई कोई इंटीजर वैल्यू होगा, बट विच वैल्यू आई वांट टू प्रिंट? द वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन द सम वेरिएबल, राइट? तो हियर यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल जिसका वैल्यू आपको प्रिंट करना है, बिकॉज इट विल, दिस स्टेटमेंट विल फेच द वैल्यू फ्रॉम द मेमोरी. ये अगर आपका मेमोरी है, दिस इज योर NO1, दिस इज योर NO2 एंड दिस इज योर सम. तो मेरे NO1 में 3 पड़ा है, यहाँ 5 पड़ा है और सम में 8 पड़ा है. सो द मोमेंट यू एग्जीक्यूट दिस printf स्टेटमेंट, ये वाला printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, तो हाउ कंपाइलर वर्क्स? कंपाइलर विल चेक, ओके डबल कोट्स है, ठीक है, मतलब एज इट इज उसको प्रिंट करना है, तो उसने कंसोल पे प्रिंट किया आंसर इज इक्वल टू, फिर उसने देखा कि यार यहाँ पे तो %d है, अच्छा %d मतलब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वो वैल्यू मैं कहाँ से लेके आऊँगी? तो वो देखेगा कि ओके उसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक वेरिएबल पड़ा है, क्या नाम है? सम नाम है, ठीक है, तो वो जाएगा मेमोरी में सम, ठीक है, सम में क्या पड़ा है? 8 पड़ा है, तो वो सम लेके यहाँ पे आएगा एंड इट विल प्रिंट सम. So this is the journey of this printf statement where you can retrieve the data from the memory. अगर मुझे यहाँ पे float value print करवानी है तो format specifier would be %f, और अगर character है तो it would be %c, right? So this is how you can use all the statements, printf, scanf, दोनों statements. एक और बात, don't get confused. I can understand कि first shot में सब काफ़ी confusion भी होगी, ये कैसे करेंगे, कैसा, ये क्यों है. Trust me, if you really believe in me, trust my words कि हाँ gradually सारी चीज़ें समझ में आएंगी and the one day you will be able to run the whole program by your own, और उसमें भी सारी चीज़ें आपको समझ में आती होगी, अच्छा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, राइट? सो अगर आज थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत कंफ्यूजिंग है, सो डोंट वरी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवरीथिंग वुड बी फाइन. ओके, समझ में आया इतना सबको? Yes, ma'am. Someone raise the hand.
मैम हम्म, अभी जो ये हम लोग ने ये किया प्रिंटफ और आंसर, मतलब ये मैसेज प्लस फॉर्मेट स्पेसिफायर और ये सम, मतलब ये दोनों हम लोग ने एक में करके किया, तो इसके बाद में हम लोग को स्कैनफ वाला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आया व्हाट यू आर आस्किंग। क्या, कहाँ से क्या लिखना पड़ेगा? अभी जो हमने ये स्टेटमेंट लिखा ना, प्रिंट एफ और फिर आंसर इक्वल्स टू ये क्वेश्चन का साइन और डी और फिर ये सम जो हमने अभी अभी स्टेटमेंट लिखा है, हम्म, उसके बाद में हमें फिर स्कैनफ का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। no, 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 no. The reason is scanf statement we use wherever we want to take value from the user. तो हमने ऑलरेडी 2 वैल्यूज यूजर से ले ली है, राइट? वी हैव ऑलरेडी टेकन 2 वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, फर्स्ट वैल्यू and second value. So input done, processing is also done. So now the time to get the output, to print the output. So now we don't need to put the scanf statement, right? ठीक है मैम। चलो, और किसी को और कोई क्वेरी है अभी के लिए? बोलो, किसको है प्लीज? मैम जस्ट अ डाउट। मैम हम स्कैनफ में एम्परसैंड नंबर 1 नंबर 2 लिखते हैं, राइट? तो मैम ये प्रिंटफ वाले में हम एम्परसैंड सम क्यों नहीं लिखते हैं, सिर्फ सम क्यों लिखते हैं? द रीजन इज, वो उसका रूल है बेटा, इट्स अ रूल कि प्रिंटफ में उसको पता है कि उसको कहीं पे जाके वापस लानी है चीजें। दिस ampersand shows that I have to store this value at this location, right? Ampersand scanf says that it is storing statement and this is retrieving statement. ओके मैम। ampersand का सीधा मतलब अगर हम दूसरे टर्म्स में करें तो ये होता है कि भाई यहाँ पे जाके ये वैल्यू तो डाल दे, और अगर कुछ भी नहीं है प्रिंटफ में, प्रिंटफ स्टेटमेंट में वी कैन नॉट यूज द ampersand, तो जो भी वेरिएबल होगा वो वहां जाएगा, वहां पे ऑलरेडी कुछ पड़ा है वो लेके वापस आ जाएगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। चलो, एनी अदर क्वेरी? ठीक है, if you don't have query then let's go to the last statement, that is get ch, and after that I will do some alteration in the program. I'll show you, कुछ R&D करेंगे। हाँ, ask the question. मैम अभी आपने जो कहा वो प्रिंटफ का दूसरा, वो जरा रन करके दिखाए ना। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। I'll run this program with all the possibilities, जितने भी हमने permutation combination है हमारे पास, we'll do it, don't worry. I'm going to show. Okay, so let's just finish this last get ch. Get ch is basically used to hold the screen. क्या होगा देखो, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। I'm running the, okay, let me first change this. Okay, see, I'm just running the program to 3, याद रखना ये वाला आउटपुट। हाँ, 5 आया मेरा, राइट? अब हिट एंटर, यस, ठीक है। अब इफ आई एम नॉट राइटिंग, और सॉरी, इफ आई कमेंट दिस गेट ch, तो क्या होगा वो देखो, क्लियर स्क्रीन तो हो जाएगा बाय द वे। आई रन द प्रोग्राम, आई एम एंटरिंग 8 and 9, सी, तो सीधा बाहर आ गया, मतलब उसने स्क्रीन को होल्ड नहीं किया एट द टाइम जब आउटपुट चाहिए था, बट आउटपुट इज देयर, सी, बट उसने स्क्रीन होल्ड नहीं किया। गेट ch इज अ फंक्शन विच होल्ड द स्क्रीन टू गेट द आउटपुट और टू गेट द कैरेक्टर। ch का मतलब यहाँ पे होता है कैरेक्टर, टू गेट द आउटपुट, टू सी द आउटपुट, टू होल्ड द स्क्रीन, राइट? हेलो मैम मेरा यही हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, मैं बाहर निकल गया, मतलब मतलब सम नहीं आया, आंसर नहीं आया था, मैं डायरेक्टली बाहर निकल गया था। हाँ, मतलब वो सीधा आपको एडिटर पे ले आएगा। अगर इफ यू वांट टू सी द प्रीवियस आउटपुट ना, यू कैन प्रेस ऑल्टर F5,
ऑल्टर F5 विल गिव यू कि भाई ओके कंसोल स्क्रीन में क्या है, अभी क्या पड़ा हुआ है स्क्रीन पे. ऑल्टर F5 इज द शॉर्टकट की, राइट. बट मैम उसमें एरर नहीं दिखाया था, मेरे को वो लगा एरर एरर नहीं आया इसलिए हो जाएगा. नहीं, एरर नहीं आएगा बिकॉज सी एडिटर को ऐसा नहीं है कि बिग सी स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए, उसको ऐसा नहीं है. वो तो हमने कुछ नहीं लिखा है तो वो हमारा प्रॉब्लम है. हाँ, अगर उसके रूल के खिलाफ हम जाते हैं कि भाई तूने सेमीकोलन क्यों नहीं किया, तूने यहाँ पे हैश क्यों नहीं लगाया, या तो तूने यहाँ पे कैपिटल आई क्यों किया, तो उसको प्रॉब्लम होगी. आपने कुछ नहीं लिखा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट. ओके मैम. चलो, सो एवरीवन एंड हियर एंड ऑफ द program. Now I'll do some changes. We'll show you that how different types of error can be generated and जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक की है, we see all the things. If you have any doubt or a query, then ask. Otherwise, I'll start the running. I'll start executing the program. Shall we start? Yeah. चलो. First I'll run by my own, but now you have to tell me कि मैम अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा. I want your inputs, I want your doubts कि मैम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा. I'll start with my first option, that instead of the this, okay, I'll start with the variable only. मुझे 1 NO चाहिए. देखो पहले से उसने रेड दे दिया. मैं वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन पे काम कर रही हूँ, तो उसने 1 दिया, रेड है तो कंपाइल तो डेफिनेटली नहीं करेगा. 4 एरर्स. सी डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, अनडिफाइंड सिंबल, मतलब उसको नहीं मिला कि भाई ये सब क्या लिखा है. ओनली बिकॉज ऑफ द 1 मिस्टेक इट इज गिविंग 4 एरर्स. रिमूव इट. इफ आई पुट द अंडरस्कोर तो भी एरर तो आएगी बिकॉज उसके पास NO1 नहीं है. अंडरस्कोर NO है, but we have used NO1 in the program, but we have not declared it. This is declaration section, variable declaration. So normally what we do here, we declare the variable. Declaration of variable का मतलब है, in this statement, in this line, you have to declare all the variables which you are going to use in your program. जो चीज़ें यूज़ करनी है आपको पहले से बताना होगा कि भाई मैं ये चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ. सपोज आई एम ट्रैवलिंग, तो मुझे भाई पहले से बता देना पड़ेगा. चलो, नॉट ट्रैवलिंग, लेट्स से कि देयर इज अ गेट टुगेदर इन योर सोसाइटी, राइट. और ऐसा बोला है कि भाई दिवाली का फंक्शन है तो सब लोगों को आना है, बट यू हैव टू, और 50 रुपीज़ टोकन है. यू हैव टू डिक्लेयर कि भाई मेरे घर से 4 जन आएंगे, मेरे घर से 5 जन आएंगे, और अगर एक्स्ट्रा कोई आ गया तो पैसे लगेंगे. तो यहाँ पे हो रहा है एरर. If you have used any variable, you have to declare it, right. So see, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने लिखा अंडरस्कोर NO, ठीक है, वो वेरिएबल तो सही है, लेकिन NO1 जो मैंने यूज किया है वो डिक्लेयर नहीं किया है, तो माय प्रोग्राम विल गिव द एरर. लेट्स कंपाइल इट. एरर सी, NO1 इज अनडिफाइंड. मतलब अंडरस्कोर NO तो चला, वो सही तरीके से हमने डिक्लेयर किया था बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ द वेरिएबल, बट NO1 जो यूज किया है वो डिक्लेयर नहीं किया है. सो राइट. चलो, अब समझ में आ रहा है व्हाट आई एम डूइंग गाइस. मैम जी आपका अंडरस्कोर NO1 लिखना पड़ेगा ना, एरर नहीं, मतलब एरर हटाने के लिए. एरर हटाने के लिए मुझे यहाँ पे वो वेरिएबल लेना पड़ेगा जो मैंने डिक्लेयर किया है. तो वरना मैम ऐसा नहीं लिख सकते अंडरस्कोर NO1. यहाँ पे नहीं, वो वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन. हाँ, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन वॉट एवर द नेम आई हैव गिवन हियर, आई कैन यूज ओनली दैट नेम ओवर हियर. ओके मैम. चलो, और यहाँ पे भी एरर आएगी ना, फिर तो यहाँ पे भी NO1 है. देखो
आई? तो मैम N1 कहाँ पे भी है वहाँ पे फिर अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा ऐसा? हाँ, exactly. ओके You can use only those variables in your program which you have declared. और अगर डिक्लेयर नहीं किया है तो डिक्लेयर कर लो, राइट? ओके गाइस, सबको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम डूइंग? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो नाउ Yes, नाउ ma'am. नाउ योर टर्न. आप लोग बोलो कि मैम आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा करने पे क्या होगा. तो आप लोग मुझे बोलो कि मैम ऐसा करो तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा. मैम INT की जगह आप फ्लोट डाल दो ठीक है, चलो फ्लोट करते हैं. और मैम फिर %d की जगह भी %f डाल दी. हम अभी नहीं डालते हैं, हम पहले देखते हैं एरर क्या आती है, राइट? सपोज आई हैव डिक्लेयर्ड माय 3 वेरिएबल्स विथ फ्लोट. तो चलो सब लोग इमेजिन करो कहाँ कहाँ एरर्स आ सकती है. जहाँ जहाँ पे % है वहाँ पे यस, जहाँ जहाँ %d है, बिकॉज फ्लोट के लिए क्या है हमारे पास? % है। Percentage. एरर तो नहीं आई, लेकिन वो आई गेस मैम इंटीजर आउटपुट वो में फ्लोट में प्रॉब्लम करेगा. वो आउटपुट में प्रॉब्लम करेगा. देखो उसने आउटपुट गलत दिया. ओके it is like वो remember that invalid input, invalid process, incorrect input, incorrect process, you will not get the desired output. It is like that. So let me write. Error क्यों नहीं किया? Not necessary. उसने internally change कर लिया खुद सब कुछ. Not necessary. ये चीज़ें वर्जन टू वर्जन वेरी करेगी. तो ऐसा हो सकता है कि इफ समवन इज यूजिंग बोरलैंड, मतलब अलग एडिटर है, इफ यू आर यूजिंग दैट कंपाइलर तो एरर आए. सपोज कोई ऑनलाइन कर रहा है तो एरर नहीं भी आएगा, बिकॉज ऑनलाइन कंपाइलर्स आर मोर स्मार्ट और ऐसा है. तो सी व्हाट आई मेड द चेंजेस. फ्लोट, %f सब जगह कर दिया. अब हम उसको रन करते हैं. So 3.2, 1.2, I got so long answer. मैम यहाँ पे आप 1.2 या 3.2 की जगह सिर्फ इंटीजर लिखोगे तो क्या आएगा? चलो देखते हैं. .00000. हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि अब आप लोगों को दिमाग में सोच के रखना है कि क्या होगा, आउटपुट क्या होगा. इफ आपने सही सोचा है, मतलब योर कंसेप्ट इज क्लियर. और अभी भी अगर आउटपुट सोचने में दिक्कत हो रही है, मीन स्टिल यू नीड टू वर्क ऑन दैट. whenever you do the program, तो always output अपने दिमाग में सोच के रखो, right? because it's a float. if I am writing 4, मतलब ultimately I am writing 4.0 if it's a float. hello. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, बोला ma'am. करो यार, बोला करो. मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेले अकेले बात कर रही हूँ. okay, so guys, see, this type of things you can do with your program. तो I guess this is enough for today. अब आप लोगों को क्या करना है वो सुनो. You have लॉन्ग दिवाली वेकेशन. तो हम लोग दिवाली के बाद ही मिलेंगे. You can try programs by your own. Do some changes in this program. और अगर एरर आता है, कुछ भी है, शेयर करो ग्रुप में. डेफिनेटली कोई ना कोई आंसर दे देगा. अगर आपको एट द एंड ऑफ द डे भी आंसर नहीं मिला है, देन मुझे टैग करके आंसर क्वेश्चन वापस से डाल देना कि भाई मैम ये इसका आंसर अभी तक नहीं आया है. बिकॉज पूरे दिन मेरे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि मैं बैठ के आपका ग्रुप चेक करती रहूं कि भाई क्वेश्चन है, सॉल्व हुआ या नहीं. फाइन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. यस है ना? Ma'am, कब का है Ma'am. vacation? I'm just stopping the recording, okay, now.